بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب, کیسی گزری عید آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ. اچھا دیکھیں, آج کا جو اس ایونٹ کا مقصد ہے, آپ میں سے موسٹلی نیو کمر بھی ہیں جنہوں نے پہلے سیشن اٹینڈ نہیں کیا, ان کے لیے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ یہ کیوں یہ سیشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے. بیسیکلی آپ نے اس سے پہلے تو ویب سائٹ کے نام سے میسیج آتے ہوں گے, پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم این کے نام سے بھی میسیج آنا شروع ہو گئے. تو یہ بیسیکلی پی ایم این بنوانی مارکیٹنگ نیٹ ورک کا آئیڈیا کیسے آیا, کیوں آیا, اتنے عرصے کے بعد, تقریباً 15 سال ہو گئے انسٹیٹیوٹ کو رن کیے ہوئے, پھر یہ اتنے عرصے کے بعد کیوں آیا. میں شروع سے ہی, چونکہ جب انسٹیٹیوٹ فارم کیا اس میں بھی میں پہلے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں تھا, اور جب یہ اسٹیپ لیا تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے بڑی مخالفت ہوئی, میں زیادہ کم ہی نہیں کروں گا. تو بہرحال یہی رہا کہ پچھلے 15 سالوں میں بہت سی اپرچونیٹیز آئیں, لوگوں نے بہت بڑی بڑی آفرس کی, بہت بلڈرز نے, ایک اپنا نیٹ ورک الحمدللہ اتنا بن گیا پورے پاکستان لیول پر اب تو کہ, اور رسپیکٹ مطلب عزت کے ساتھ ہمارا نام یا لیا جاتا ہے, لوگ مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری پوری فیکلٹی کی. تو بہت سے بلڈرز نے رابطہ کیا, کچھ ایسے بھی آئے جو دانستہ ایک پلاننگ کے تحت ایڈمیشن لیا یہاں پر, اور انہوں نے اعتماد جیتا امان اللہ بنوانی صاحب کا, فیکلٹی کا, اور پھر جو ہے نا کہا گیا کہ سر ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, آپ اس کو بیچیں, ہم آپ کو اتنا انسینٹیو دیں گے, اتنا انسینٹیو دیں گے. تو جب گئے ڈیپتھ کے اندر تو پتہ یہ چلا کہ زمین کے معاملات ہی صحیح نہیں تھے, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی تھیں جو وہی جو آپ کو سب کو پتہ ہے, ناقلہ زمین پر کھاتے بٹھا کر پروجیکٹ بنا دیا گیا اور مال بیچنا شروع کر دیا. بڑی بہترین قسم کی آفس بنائی اور لوگوں کو گھیرنے کے ساتھ ساتھ ہماری پی آر کو بھی یوز کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے کئی کیسز آئے یہاں پر. گوادر کا بھی ایک کیس آیا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا. تو یہ ہے کہ بہرحال میں اپنے آپ کو اسپیسیفک رکھا کہ یار نہیں, ایجوکیشن کے لیے وقت کیا ہے تو پھر اسی کو فوکس کرتے ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتے, ادھر ادھر جائیں گے تو پھر گئے. تو بہرحال پی ایم این جو ہے وہ کیوں خیال آیا, ایسا ہوا کہ اب اتنے جب اتنا عرصہ ہو گیا تو ہمارے کئی ایسے جو اسٹوڈنٹ تھے اسی بیچ میں سے تھے, انہی گروپ میں سے تھے, آپ ہی کی کلاس فیلوز تھے یا پہلے سے تھے, وہ لوگ پریکٹیکل فیلڈ میں آئے, پراپرٹی کا کام شروع کیا, انویسٹرز کے بنتے چلے گئے. اب مطلب اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب اپنے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پروجیکٹس اپنے لانچ کر رہے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. میں اکثر وزٹ کرتا رہتا ہوں, کب ٹائم ہوتا ہے تو خاص طور پر دیکھا ہوگا آپ نے ایک میٹ اپ سیریز ہے, وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے 5 سال, کسی نے 7 سال, کسی نے 10 سال پہلے کورس کیا, وہ آج وہ اچھی جگہ مطلب اچھا سیٹ اپ اپنا رن کر رہے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی ایک ریکویسٹ تھی کہ سر یہ پروجیکٹ ہے, آپ دیکھ لیں, سارا معاملات ہیں, اس کو کریں. اچھا, پھر ایک بہت بڑا جو پریشر تھا وہ ایسے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس کا تھا جو فل ٹائم اس بزنس کو نہیں اڈاپٹ کیا انہوں نے. وہ جو چیلنجز ہوتے ہیں, شارٹ انالیسس جو میں نے آپ کو کرایا تھا, تھریٹ کیا, جاب ہے تو جاب کیسے چھوڑوں, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ سرکاری جاب ہے تو وہ چھوڑ کے کیسے آؤں, وہ ایک بہت بڑی ہماری وہ تھی نا, ہمارے جو ٹیم کے ممبر تھے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ یہی کہ اپنے آفس ورک میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ, تو بہت سے ان کے ساتھ وہ مسئلے ہوئے میرے پاس, چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں, مشورے کرتے رہتے ہیں, تو یہ پروجیکٹ کیسا ہے, یہاں ہاتھ ڈالیں نہ ڈالیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں, سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے واٹس ایپ کے تھرو. تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس فورس تھی جو پریشان تھی کہ یار کہاں انویسٹمنٹ کریں. آپ کو پتہ ہے کراچی کے معاملات. تو پھر یہ ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لانچ کیا, پی ایم این نے پہلا پروجیکٹ تھا اقرا عائشہ ریزیڈینشیا کے نام سے.
तो क्राइस्ट सिटी इनका फेज़ 1 है। तो फेज़ इस तरह हुआ कि ये जो ज़मीन थी इसके जो मामलात हैं वो मैं ही देख रहा था। सर्वे लैंड थी, उसको फिर कन्वर्जन कमर्शियल में मुख्तलिफ NOCs, बाउंड्री वॉल और पूरा लेआउट प्लान की अप्रूवल, MTA का NOC, फिर अब और जो प्रोसेस चलेंगे इसके अंदर। तो ये मैं उन बिल्डर को जो स्टूडेंट भी थे उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा था 1.5 से 2 साल से। मुख्तलिफ चीज़ों को आबाद का मेंबर भी बनाया, उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में कंपनी रजिस्टर कराई, प्राइवेट लिमिटेड, चैम्बर की मेंबरशिप और जो जो इसकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनका पूरा प्रोसेस कराया। एक तो सॉफ्टवेयर भी उनको डिज़ाइन करा के दिया कि अपना पूरा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। मतलब जो वो वैल्यू एडिशन वो अपने बिजनेस में करना चाहते थे। तो 1.5 से 2 साल से मैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा था। इसी दौरान फिर ये ज़मीन का मामला आया, ज़मीन भी परचेज हुई। फिर जो सर्वे लैंड में आपने पढ़ा होगा कि इसमें वारिस बहुत होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मौरूसी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि तमाम वारिसों को जो है ना वो एक बैठा के फिर उनको पेमेंट देना। एक सिर्फ मैं इसी बता रहा हूँ, फेज़ 1 में 32 गुंठे एक ज़मीन थी, सिर्फ 32 गुंठे, उसमें 35 जो है ना वो वारिस थे। और उन फिर तमाम वारिसों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस बुलाया गया, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो बनी, उनको पेमेंट के चेक दिए गए, सारा प्रूफ ताकि वो कोई मसला खड़ा ना करें। फॉर्म 7 अलिफ निकाला गया ताकि प्रीवियस कोई वारिस मिस तो ना हो। मतलब अपने तौर पर सारी चीज़ें जो है ना वो की गई। और इसके बाद ज़मीन मुटेट हुई, मुटेशन भी इसकी हो गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। फिर मज़े की बात ये कि सारी usin-namin.gos जो वेबसाइट का मैंने अक्सर आपसे जिक्र किया है, तो उस पर भी वो पूरा रिकॉर्ड अपडेट है। आप वो बिल्डर का NIC ऐड करेंगे तो जो ज़मीनें हैं इनके नाम पर वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है कि मतलब सारा, चूँकि वो सारा प्रोसेस करवाया था मैंने, इसलिए मतलब कोई अगर अननोन बंदा भी पूछता है ना कि यार ये ज़मीन इनके नाम पर है नहीं है, मैंने कहा NIC नंबर है बिल्डर का, आप सर्च कर लो। तो पूरी जितने सर्वे इनके नाम पर है फेज़ 1 फेज़ 2 के, जिनकी सेल डीड हो चुकी है और मोटेशन भी हो चुकी है, सारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, पता है आपको, सारी चीज़ आ जाती है। तो इतनी सब कुछ अथेंटिकेशन के बाद जब ये सारी चीज़ें मेरे अपनी निगरानी में हुई तो मुझे मतलब यकीन हो गया कि यार ये कुछ चीटिंग, फ्रॉड, धोखा। एक तो वैसे बात हो रही थी ना डबल फाइल, अक्सर आपको कहा ना ट्रिपल फाइलिंग, डबल फाइलिंग। तो मैंने बिल्डर से ऐसे चेक करने के लिए, हालांकि वही का स्टूडेंट है, तो मैंने कहा इसको कुछ करते हैं, ये डिमांड ज़्यादा आ गई है फेज़ 1 में, कुछ 50% डबल कर लेते हैं, ठीक है। फेज़ 2 तो है, हम एडजस्ट कर देंगे, फेज़ 3 है और भी ज़मीनें हैं इनकी। तो मेरी शक्ल देख रहे हैं, सर ये आप कह रहे हैं? बिल्डर की बात कर रहा हूँ, हुसैन भाई। अरे हाँ क्या है, बिजनेस है, वो क्लास है, ठीक है ना। क्लास में तो कुछ और होता है, वो तो बहुत कुछ होता है, ये तो कारोबार है, क्योंकि इसमें ड्रॉप आउट रेशियो होगा तो फिर क्या करेंगे, पता है क्या सोच के बोलते हैं, नहीं सर डबल नहीं करना, किसी भी कीमत पे नहीं करना, आपने यही पढ़ाया है। मैंने कहा हाँ, मतलब एक चीज़ होता है ना कि बंदा उस तरफ चेक करने 2 नंबरी की तरफ जा रहा होता है, तो वो खुद उन्होंने स्टॉप कर दिया ना। हालांकि मैं चेक कर रहा था उनको कि आया वो इस तरफ सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे। मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं डबल फाइलिंग, आपने पढ़ चुके हैं ना। तो ये कि वो उन्होंने बिल्कुल टोटली जो है ना उसको डिनाई किया, बना नहीं सर ये। तो उसके बाद फिर मेरी जो है ना वो बड़ी सेटिस्फेक्शन और लेवल बढ़ गया। फिर हमने बाकायदा ये एक ख्याल आया पंजवानी मार्केट नेटवर्क बनाया जाए। पंजवानी नाम इसलिए रखा कि आपको पता है वेबसाइट के हवाले से एक वेल नोन थी, रेपो अपनी बनी हुई थी, तो उस वजह से इसी को रखा के बजाय कोई और यूनिक नाम रखते, इसको ही कैश किया गया। नेटवर्क का लफ्ज़ इसलिए है कि ये पूरी मेरा जिसमें आइडिया है और बल्कि इस पर अमल भी किया है कि सबसे पहला जो उसूल बनाया गया है इसका, वो ये बनाया गया कि स्टूडेंट के ज़रिए काम करना है, ठीक है, किसी आउटसाइडर को नहीं लाना। ये पहला ऑब्जेक्टिव था, ये कंपनी बनाने से पहले ही जो है ना वो सोच लिया था कि सिर्फ स्टूडेंट के जरिए काम करना है।
اب جب یہ بات سوچی جاتی ہے تو یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے ذریعے کام کرنا. تو بہرحال پھر اس پر جب یہ پروجیکٹ آیا اور یہ سوچا تو میرے اپنے سرکل کے اندر جو بڑے نامی گرامی بلڈرس تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ میں پروجیکٹ کر رہا ہوں تو ایک تو یہ کہ سب کو یہ ہو گیا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اس کے اندر، اس نے کر رہا ہے تو یہ سارے معاملات اس نے دیکھے ہوں گے. تو ایک بڑا پرومیننٹ بلڈر ہے، یہیں کے ہیں کراچی کے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا اور تو کہا جاؤ ہمارے سے بات کرو، جتنے بھی پلاٹ ہیں ہم ایک ساتھ دے دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ آئے ان کے نمائندے، میں نے کہا، اس نے کہا سب دے دو، ہم دے دیں گے، ہماری تو بہت میمن وہ کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا، آپ کو پتہ ہے ذرا اس بزنس کے اندر بہت ہیں. تو انہوں نے کہا پورا پروجیکٹ دے دو ہمیں، ہم اس کو بانٹ دوں گا، میں کسی کو 100 پلاٹ، کسی کو 10 پلاٹ، کسی کو 20 پلاٹ، تو ان کا ہے طریقہ کار یہ کرنے کا. تو میں نے ان کو کیونکہ پہلے دن سے سوچا ہوا تھا کہ لالچ آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے یار ایک جھٹکے میں بک رہا ہے پروجیکٹ، دے دو. ایسا ہی ہے نا، اسٹوڈنٹ کو کیوں چانس دیں، دوسرا کو دے دیں گے. مگر یہ میں نے کہا کہ نہیں یار یہ پھر غلط گڑبڑ ہو جائے گی. میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا سوری، یہ اس طرح جو ہے نا وہ پالیسی نہیں ہماری کہ ہم اس طرح بیچیں. برحال ان کو میں نے ریفیوز کیا. پھر اس کے بعد فرسٹ اسٹیپ لیا کہ آپ لوگوں پر میسیج آیا کہ آپ پی ایم این کے ایفیلیٹر بنے، کہ انویٹیشن دیا گیا ہے، ایک پریزنٹیشن بھی ہوئی، 3-4 پروگرام میں آلریڈی ہو چکے ہیں. تو اس میں انوائٹ کیا گیا کہ جو مطلب کام کرنا چاہتا ہے اس بزنس میں وہ پی ایم این کا ایک پراپر ایفیلیٹر بنے. اور اس کا ایک فارم جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، ان سے ان کے پرٹیکولرس دیے گئے. پھر پرٹیکولرس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا گیا ان کے اور پی ایم این کے درمیان. ایم او یو میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں، اس میں کمیشن کی ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی، اس کے اندر جو اسٹیپس ہیں مختلف ایفیلیٹرس کے 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیسائیڈ کی، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. اور وہ تھا ایک مستقل بنیاد کے اوپر ایفیلیٹرس کو ایفیلیٹ کرنا اور ان کے ذریعے پھر کام کرنا. یہ الحمدللہ یہ تجربہ جو ہے بڑا کامیاب رہا، اور تقریباً شروع میں 35 کے قریب ایفیلیٹ ہوئے ہم سے. اچھا، اس کے اندر کیٹیگریز ہم نے اس طرح ڈیزائن کی تھی کہ ایک فری لانس کیٹیگری تھی کہ آپ اپنا جاب پہ رہتے ہوئے کام کریں، اپنی مارکیٹنگ کریں، لوگوں کو اپنے جو عزیز اقارب، فیملی ممبرس یا واٹ ایور جو بھی اپنے طور پر اس کو مارکیٹ کریں، وہ بھی ان کا ایک کمیشن کا ایک پارٹ تھا. ایک اگلی کیٹیگری تھی کہ جو پراپر آفیسز لے کر بیٹھے ہوئے لوگ، اسٹیٹ ایجنسی رن کر رہے ہیں یا کوئی مارکیٹنگ کمپنی رن کر رہے ہیں، ان کے ایک ایکسپینس ہیں. ایک ان کا کیٹیگری برانز کے نام، سوری سلور کے نام سے تھا، سلور کیٹیگری. ان کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کو کچھ کمیشن تھوڑا زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو فری لانسر، اور ان کو کچھ پبلسٹی مٹیریل کے ٹولز بھی دیے گئے، اسٹڈیز وغیرہ، بروشر وغیرہ. تیسری ایک کیٹیگری جو ہائیسٹ کیٹیگری تھی، گولڈ کیٹیگری تھی، وہ یہ چانس دیا گیا کہ بھائی کوئی اگر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں 10 پلاٹ بھیج دوں گا، 20 پلاٹ بھیج دوں گا، تو وہ ایک ٹارگیٹ لے لے ہم سے، ایک بیلٹ ہم اس کو دے دیں گے 10-20 پلاٹ کی، اس کے وہ اس کے اگینسٹ ٹوکن دے دے اور اس کو پھر آگے ریسیل کرے. اور اس کے لیے بہت زیادہ کوئی ہارڈ ٹاسک نہیں دیا گیا تھا. یہ سہولت دی گئی تھی اور ہے بھی کہ فرسٹ ٹرانسفر جو ہے یہ فری رکھا گیا ان کے لیے، کہ اگر آپ 10-20 پلاٹ لے لیتے ہیں اور وہ اوپن فائل ہوگی، آپ نے فرض کیجیے 15 دن بعد، 1 مہینے بعد کسی کو بیچا، وہ فائل آپ بلڈر آفس میں بھیجیں گے، اس کے نام پر وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اس کا جو بھی 15-20 ہزار روپے چارجز ہوتے ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے. یہ ایک ایڈوانٹیج رکھا گیا. ٹارگیٹ کوئی ٹائم پیریڈ دیا؟ ہاں بھائی، تقریباً 3 مہینے کا ٹارگیٹ دیا، کیونکہ ذرا یہ زیادہ 3-4 مہینے سے زیادہ پروجیکٹ نہیں رکھنا چاہتے ہم نا. اور یہ ٹاسک لے کر چل رہے تھے کہ کوئی اس کا جو ہے وہ ایفیلیٹرس کو 3 مہینے کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا. تو یہ ایک سلسلہ تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ایفیلیٹرس کے جو 35 میں سے
30 एफिलिएटर्स तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि उनको कहा गया था कि भाई आपको 6 महीने ऑब्जर्व करेंगे, वो MOU का एक पार्ट है कि आपको 6 महीने ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको इस एफिलिएशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो 35 में से 30 लोग बिल्कुल ही खामोश, ठीक है। सिर्फ 5 लोगों ने इकरा आयशा सिटी फेज़ 1 के जो सिर्फ 65 प्लॉट बचे हुए थे, 65-70 के करीब बचे हुए थे, सारे सेल कर दिए सिर्फ 5 लोगों ने। एक स्टूडेंट ने तकरीबन 40 प्लॉट सेल किए, ठीक है। टास्क लिया उन्होंने, टारगेट लिया, और उनको यकीन था, डॉक्यूमेंट सारे मैंने इनको दिखाए, मैंने कहा पहले आ जाओ देख लो फिर करना तुम अपनी, मैं तो हूँ मगर पहले अपनी तसल्ली कर लो। पूरी इसकी सेल डीड अभी मेरे पास रखी हुई है कॉपी, वो फिर मोटेशन पूरा वेबसाइट के ऊपर, उनके कुछ फॉरेन बाहर बाहर से इन्वेस्टर थे। तो मैंने ये देखा, बड़ी हैरत हुई मुझे, कभी इस तरह एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि बाहर के लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। मतलब कमर्शियल प्लॉट, 4 ऐसे प्लॉट कमर्शियल जिसकी कीमत 25 लाख रुपए एक प्लॉट की, फुल कैश जो है ना वो बिल्डर के अकाउंट में भेज दिया उन्होंने। यानी बहुत बड़ी बात होती है ये कि इस तरह मतलब, तो ये लोग होते हैं ना चीटिंग, फ्रॉड, धोखे का शिकार बेचारे जो बाहर वाले लोग हैं, वो पैसे तो होते हैं उनके पास, वो ढूंढ रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी। वो ऐसे ही होता है कि वो बगैर देखे जो है ना, बगैर उसकी वो देखे हुए, अभी जैसे इस केस में हुआ फेज़ 1 में जो कमर्शियल की जो बेल्ट थी पूरी, वो फट 2 बंदों ने पूरा 4 कमर्शियल और उसके पीछे रेजिडेंशियल, वो फुल कैश, फिर गो के कैश का एडवांटेज दिया गया उनको। मगर अभी तक यानी तकरीबन ये 10 दिन हो गए, अभी तक उनको फाइल जो है ना वो नहीं पहुंचाई गई। अभी आज फाइल तैयार होगी, मैं कल ही बिल्डर के पास था, फाइल तैयार थी, तो फाइल उनको अब दी जाएगी। तो ये जो एफिलिएटर्स के थ्रू तजुर्बा हुआ वो बड़ा अच्छा रहा फेज़ 1 का। फिर फेज़ 2 इसी का इकरा आयशा सिटी का मैं अभी थोड़ी प्रेजेंटेशन भी आपको दूंगा। तो वो भी तकरीबन 20-25% सेल हो चुका है। तो ये तजुर्बा कामयाब। अब इस नेटवर्क को मैं और एक्सटेंड करने के लिए जो आज की जो ये एक्टिविटी रखी गई थी, कोई था आप में से, मेरा ख्याल है कोई एफिलिएटर है? वर्कर साहब आप हैं? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं शायद, सिर्फ आप एक ही है ना इस वक्त। तो आप भी खामोश लोगों में से है ना, 30 मैंने लोग बताए ना, ठीक है। तो ये आपके लिए भी मोटिवेशन है कि जब दूसरे लोग बेच सकते हैं तो आप भी बेच सकते हैं, व्हाटएवर क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मसले होंगे। तो वो जो 20-30 प्लॉट बेचे हैं जिन्होंने, उनका कोई ऑफिस नहीं है, एज अ फ्रीलांसर। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आज अब ये फेज़ 2 हम लैंड का प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ फिर बहरिया के 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। वो भी एक यहीं के पास आउट हैं, डिप्लोमा किया है उन्होंने, उसामा कलीम एसोसिएट्स, उनका जौहर में बहुत पुराना नाम है। तो यंग लड़का है बिल्कुल, 22-23-24 साल, बाप ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने उसको भी गाइड किया, और उनका भी फेज़ 1 और फेज़ 2 प्रोजेक्ट हैं, ग्राउंड +8, नीचे शॉप्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड भी हैं, 2 बेड भी हैं और 3 बेड भी हैं, तो पूरी वैरायटी मौजूद है। तो अब ये है कि ये प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं, अब डेफिनेटली इनको जो है ना वो आपके ज़रिए सेल करना है, जो एफिलिएटर्स हैं उनके ज़रिए सेल करना चाह रहा हूँ। अलग से बेचना तो कोई मसला नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ वेबसाइट को स्टूडेंट्स को, ये बाहर से बहुत से लोग आए जिन्होंने मतलब अभी भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो अभी एक UAE से एक साहब ने कांटेक्ट किया था, वो हमारे स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे मेरे एक दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा सेटअप है, उन्होंने दुबई से रहरा का कोर्स भी किया हुआ है, आप उनको एफिलिएट करें। मैंने कहा नहीं, ये पॉलिसी नहीं है कि इस तरह करें। हाँ, आप हो जाएं एफिलिएट, आपके थ्रू फिर हम उनको दे देंगे, वो ठीक है, आपके थ्रू होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक अटैचमेंट होगी ना वेबसाइट से, वो उसकी नहीं होगी,
ظاہر ہے جو 3 مہینے بندہ یہاں بیٹھ چکا ہے نا اور دیکھ چکا ہے, ہمیں آبزرو کر چکا ہے ہماری پوری فیکلٹی کو, ہماری کورس کو, وہ کم از کم دھوکہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کا پورا میں نیٹ ورک پورے پاکستان لیول پہ بنانا چاہ رہا ہوں. ابھی عید کے بعد میرا ارادہ ہے کہ شہر شہر جاؤں بائی روڈ. بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ حیدرآباد میں, سکھر میں, ہر شہر میں ہی ہے. آن لائن کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے تو پورے پنجاب, ایون گلگت تک بھی اپنے لوگ ہیں. تو ویسے تو کورسپونڈنس ہو رہی ہے ان سے. تو یہ ہے کہ ہم اس طرح پورا نیٹ ورک میں بنانا چاہ رہا ہوں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس کراچی کے پروجیکٹس ہوں گے, آلریڈی ابھی سے ملتان میں 2 پروجیکٹس ابھی پروسیس میں ہیں. ہمارے نمائندے ہیں عتیق صاحب, عتیق الرحمان صاحب. ایک برانچ آفس بھی ملتان میں ہے اس کی. تو اس طرح کے ہم آفیسز بھی جو ہے نا وہ PMN کی مختلف شہروں میں بنائیں گے, اور ایک اس کو نیٹ ورک کے ذریعے کام کریں گے. اور انشاءاللہ اچھے پروجیکٹس دیں گے کراچی والوں کو یا پورے پاکستانیوں کو جو باہر بھی ہیں, خاص طور پر لوکل تو ہیں ہی. ان کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ لینڈ یا جو بھی ہے وہ چیز ہم پوری پراپر چیک کر کے اس کو کریں گے. تو یہ آبجیکٹیو تھے. اس کے اندر کچھ جو اگر آپ اس کی مارجن کی بات کریں گے کہ ڈفرینٹ اس کے اندر چونکہ سیگمنٹ ہیں پرسنٹیج کے, تو آپ ابھی انڈیویجول طور پر ڈسکس کر سکتے ہیں مجھ سے کہ کیا اس کے اندر مارجن ہوگا. تو ڈفرینٹ پیکیجز ہیں. بحریہ کی اپنی ایک ریٹ ہوتے ہیں جو یہ دیتے ہیں, بحریہ کے جو بلڈر دیتے ہیں, اور لینڈ کے پروجیکٹ کی اپنی اس کے مارجن ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو انڈیویجول بیسس کے اوپر جو آپ اگر انٹرسٹڈ ہوئے تو اگر آپ اس کی ممبر بننا چاہتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا اوور ویو دوں گا آپ کو اس پروجیکٹ کا. دین اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے اس کے آپ کے جو بھی سوالات وغیرہ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ پریزنٹیشن آن کر رہا ہوں. یہ بیسیکلی پوری جو ڈیزائننگ ہے اس کی اس پروجیکٹ کی وہ اسی طرح بنائی گئی ہے. تو یہ جو ہے اقرا عائشہ ریزیڈینشیا, یہ اس میں 80 اور 120 گز کے پلاٹس بھی ہیں اور ویلاز بھی ہیں. ٹھیک ہے, پوری ورائٹی رکھی ہے. 80 گز 120 گز کے پلاٹ بھی ہیں اس میں, اور کمرشل پلاٹ بھی ہیں 80 گز کے, اور اس کے علاوہ جو ہے ویلاز بھی ہیں 80 گز کے سنگل سٹوری بھی ہیں, 80 گز کے ڈبل سٹوری ویلاز بھی ہیں, 120 گز کے سنگل سٹوری ویلاز بھی ہیں, 120 گز کے ڈبل سٹوری ویلاز بھی ہیں. سب کی پرائسز وغیرہ یہ پوری ایک ورائٹی ہے. مطلب پلاٹ لینا چاہے تو پلاٹ لے لے, یس مکان لینا چاہے تو مکان بک کرا لیں. اچھا, ایک اور جو اہم بات میں نے آپ کو نہیں بتائی اس پروجیکٹ کے حوالے سے, ایک جو ٹاسک ہمیں بلڈر نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نہ صرف اس کی سیلنگ بلکہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے پروجیکٹ کی, ڈیولپمنٹ یعنی پھر انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے, جو پانی سیوریج جو مطلب پورا ڈیولپ کرنا ہے تو وہ بھی ویب سائٹ کو ہی کرنا ہے, PMN کو کرنا ہے سوری. مگر یہ ابھی بھی میں آپ کو یہ اس کی دیتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہی ہوگا, کیونکہ یہاں کنسٹرکشن کے بھی ہمارے کورسز ہوتے ہیں, بلڈر پروجیکٹ ڈیولپر کے بھی کورسز ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ تھرو ویب سائٹ کے نہیں ہوں گے, باہر سے ہم نہیں ہائر کریں گے. اس کی جو پہلی انیشلی جو اسٹیپ لیا تھا ہم نے, اس کا لے آؤٹ پلان تھا. اس پروجیکٹ کا جو لے آؤٹ پلان ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, منان صاحب آرکیٹیکٹ ہیں, یہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے جو یہاں کے ان کو اپرچونیٹیز ملیں. ٹھیک ہے, ہم کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں, مگر کیوں جب ہمارے پاس یہاں اتنی کیپیبل ٹیم ہے اور ہے الحمدللہ, آپ کو سب جانتے ہیں کہ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ اپنا جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم کیوں ان کو اپرچونیٹیز نہ دیں. تو اسی طرح نہ صرف یہ کہ ابھی تو اس پہ فیز 1 پہ تو شاید ابھی عید کے بعد ہی کام شروع ہو جائے گا, چند دنوں کی بات ہے ڈیولپمنٹ کا کام. پھر اس کے بعد اس میں جو کنسٹرکشن ہے ویلاس کی, یہ بھی بلڈر نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ اس کا باقاعدہ پراپر کمٹمنٹ کے علاوہ کانٹریکٹ بھی سائن ہے. ٹھیک ہے, اور کانٹریکٹ بھی سائن ہے, اور وہ کنسٹرکٹ بھی انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ کی ٹیم ہی کرے گی. 5 سال کا اس کا ٹائم ہے, 5 ایئر اس کا پروسیس ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کیونکہ 5 سال میں اس کو ہینڈ اوور کر دیں, کیونکہ اس سے پہلے کافی چیزیں وہاں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا, اور ایک اور بات جو میں ایڈ کروں گا اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ فیز 1 فیز 2 فیز 3 کے لیے بھی زمین اس بلڈر نے لے لی ہے, اور وہاں فارم ہاؤسز کا پروگرام ہے بنانے کا.
बहुत बेहतरीन लोकेशन है, मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ। फार्म हाउसेस के हवाले से एक्सीलेंट लोकेशन है वो, हरियाली है, दरख्त हैं ऑलरेडी, मतलब वो मरीज का इलाका है, मरीज का इलाका है, और मरीज में आपको पता है हरियाली बहुत है, खेती बाड़ी बहुत है, तो उसके दरमियान में ये टुकड़ा है और उसमें इंशाल्लाह फार्म हाउस का बिल्कुल ऐसे कुदरती बना हुआ है। मुझे यही देखकर हैरत हुई कि सिर्फ वहाँ सिर्फ प्लॉटिंग ही बेचेंगे ना तो ये फ़ौरन निकल जाएगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बताऊँ आपको कि आपको सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त कराची में प्रोजेक्ट्स कहाँ लॉन्च हो रहे हैं। आप देखें मोस्टली सुपर हाईवे से आगे जो कराची की हदूद भी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, और लोग वहाँ मतलब कर रहे हैं। विद इन कराची जो है ना, वो ज़मीनों के मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं, तो बड़ा रिस्क होता है कि कराची में ख़ास तौर पर जो लैंड का प्रोजेक्ट है उसको करना। मलीर एक ऐसा इलाका है कि यहाँ ज़्यादा बिल्डर्स की तवज्जो नहीं गई है। मलीर को आपको पता है कुछ बिल्डर्स हैं वहाँ जिन्होंने केन एकेडमी के साथ काम किया है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो केन एकेडमी से तकरीबन केन एकेडमी से अगर कैलकुलेट करें तो ये 15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है, और रोड सारे बने हुए हैं वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अच्छे बने हुए हैं क्योंकि पीपी की गवर्नमेंट का वोट बैंक है वहाँ पर, तो उन्होंने ख़ास तौर पर रोड्स के बड़ा अच्छा काम किया हुआ। हम पुराना इलाका है, कोई आज तक इतने दिनों से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कोई ऐसी कोई वारदात उस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई हैं। फ्यूचर के हवाले से ये जो एरिया डेवलप हो रहा है ये क्योंकि आपने मलीर एक्सप्रेस वे का भी नाम सुना होगा, ये भी उसके करीब से गुजर रहा है, तो फ्यूचर के हवाले से जो डेवलपमेंट है इन एरियाज़ के अंदर वो काफ़ी होंगी। कराची की हदूद में कराची के मास्टर प्लान का हिस्सा है, ठीक है, ये अहम बात आपको बतानी थी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का पूरा की ब्रोशर, एक डिजिटल ब्रोशर, ये कुछ यूनिट की तस्वीरें हैं कि 80 गज का जो डबल स्टोरी है वो ये होगा, और ग्राउंड फ्लोर पर मुश्तमिल सिंगल स्टोरी ये होगा। इसकी 35 लाख रुपये कीमत है, 5 साल में पेमेंट करनी है, टोटल कीमत 35 है, कोई लोन नहीं है इस पर, ठीक है, और इसकी 55 लाख रुपये कीमत है, डबल स्टोरी 80 गज का विदाउट लोन, टोटल यही पेमेंट है, और शुरू में डाउन पेमेंट के अलावा फिर इसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट है पूरी 57 मंथ्स की। तो ऐसे कोई कितनी रखी है बस? जी 20% कितनी क्या डाउन पेमेंट? हाँ तकरीबन 20%। अभी मैं आपको उसका दे रहा हूँ। पहले इस पे बिल्डर लोन्स कभी आता है जी वो खत्म हो गया, बिल्डर लोन खत्म हो गया है, याद होगा आपको, वो खत्म कर दिया है। एक और था 3 साल का था, ये याद होगा, 3 साल का, इसको और एक्सटेंड कर दिया सहूलत देने के लिए बेसिकली ना, और कोई पर्पज़ नहीं था। थोड़ा सा 3 साल बड़ा कम टाइम हो रहा था, ज़्यादा बर्डन लग रहा था, तो ये है कि उसको लोन भी खत्म कर दिया क्योंकि बिल्डर लोन की वजह से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, ठीक है, वो सब क्लियर कर दिया। ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स ये रखते हैं साथ में, ये बिल्डर हाँ हमारे बिल्डर तो अलग से, या फिर ऐसे भी छोटा सा इलावा कर्जा लिखा होता है, 30-40 लाख रुपए, बिल्कुल ऐसे ही इलावा कर्जा भी लिखा होता है, याद है छोटा सा लिखा होता है, देखा होगा आपने प्रोसेस। ये सारी टाउन है ना, सारी टाउन में वो एसपी ये बिल्कुल अभी आपका एंट्रेंस भी साइमा बना है, साइमा हाँ कोने पे बना रहा है, बिल्कुल वैसी शक्ल है, जबरदस्ती उसको प्लॉट की शक्ल यूनिट ट्रायंगल है, और वो उसी तरह उन्होंने ब्लॉक्स बनाए, और तकरीबन 1 करोड़ का वो फ्लैट दे, और प्लस 40 लाख रुपए के आसपास लोन है, 1 करोड़ 40 लाख कह रहा हूँ ना। ये प्राइसेस और जगहों पर अगर कंपैरिजन करेंगे और उनकी प्राइसेस कंपैरिजन करेंगे ना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। इंतहाई मजहबी शख्सियत हैं जो इसके मालिक हैं, शायद आप में से कोई मुलाकात है ना, जैसे देखा है ना, शायद यहीं पर आए थे ना यहाँ, ये मजहबी तजुर्बेदार, और अभी से नहीं बाय बर्थ मतलब इस तरह नहीं होता ना कि नया नया कोई मौलवी बना हो तो बहरहाल मतलब ये इंतहाई यही चीज़ें मुझे अट्रैक्ट की। फिर असल बात मैंने पूरी, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन खुद ही प्रोसेस की, खुद ही देखी, तो इसलिए जो है ना वो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं तफाक से। ये जनरल हॉस्पिटल, ये इसका एक प्लॉट के लिए कल ही एक एफिलिएटर ने मुझसे कांटेक्ट किया है इसके प्लॉट के लिए कि लोग लेना है सारे हॉस्पिटल का प्लॉट, तो इंशाल्लाह देखिए ये भी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है। लेकिन ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कम्युनिटी सेंटर, गेटेड कम्युनिटी, ये गेट ऑलरेडी प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल हो चुका है, और उसके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है, चूँकि अभी तक ये मस्जिद और ऑफिस का सेटअप भी बना हुआ, बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है, ठीक है, मतलब कवर्ड है ये, मतलब सेफ है, दोनों फेज 1 फेज 2 बराबर नहीं है सर, ये डिस्टेंस ये फेज 1 फेज 2 में तकरीबन 15 मिनट का डिस्टेंस है।
सर इसके डेवलपमेंट चार्जेस वो अलग हैं? वो सब अलग होते हैं, आपको पता है, मगर ये कि ज़्यादा नहीं होंगे। देखिए इसके फेज़ 2 के साथ ये टाइगर्स हिल का एक प्रोजेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट ने नागला ज़मीन को 500 एकड़ के करीब एक NGO को दी हुई है। उसका पर्पज़ ये होगा कि इस पर जो है वो ये जंगल बनाएंगे, एक मसनूई जंगल बनाएंगे थोड़ा आगे जाकर। तो फ्यूचर के हवाले से ये भी एक ग्रीनरी जो है ना वो यहाँ पर ग्रीन एरिया ज़्यादा होगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको, ये डिस्टेंस है, आमतौर पर आप देखा होगा कि बिल्डर के ब्रोशर के ऊपर लिखा होता है 10 मिनट की ड्राइव पर, 5 मिनट की ड्राइव पर, ठीक है ना। हमारे हकीकत ऐसा होता नहीं है। ये जो मिनट्स लिखे हुए हैं ना, ये मैंने खुद गाड़ी में बैठ के खुद ड्राइव करके 60-65 की जो स्पीड है उससे मैंने ये डिस्टेंस निकाले हैं और उस पर जो है ना फिर लिखा है। अच्छा, एयरफोर्स की भी एक स्कीम है, एयरमैन के नाम से कोई स्कीम है, इसके बिल्कुल सामने की तरफ है, बोर्ड उसके लगे हुए थे, पता नहीं क्या उसकी अब वो हैसियत है। बहरहाल मरीन गंज से एग्जैक्टली जो मरीन का जो टैंक है ना जिस जगह पर, उससे मैंने चेक किया था, एग्जैक्ट 20 मिनट की ड्राइव पर उस प्रोजेक्ट के ऊपर पहुँच। आप खुद भी जो है ना वो गूगल मैप से सो ये जो चेक 2 नंबर ये वाला जो रोड है जी, चेक पोस्ट 2, 3 का करीब पता मुझे, टैंक से मैंने नापा था। टैंक कहाँ पर है? टैंक 2 है, टैंक से फिर अंदर जो DNA गेटवे से रास्ता निकलता है ना, उस रास्ते से नापा। वैसे तो इसके रास्ते मुख्तलिफ हैं, एक स्टील मिल से भी रास्ता आता है, कायद आज़म पार्क के अंदर से, स्टील टाउन के अंदर से भी रास्ता आता है, सुपर हाईवे से भी रास्ता आता है, काफ़ी जगहों से इसकी वो है, मगर नेरेस्ट जो है ना वो यही पड़ता है करीब करीब जो है। तो बिल्कुल ये जैसे मॉडल कॉलोनी 15 मिनट, गुलशन हदीद 10 मिनट, गुलशन हदीद के अंदर से रास्ता आ रहा है जो बाद लिंक रोड से मिलता है, जो एजुकेशन सिटी को टच होता है, 10 मिनट का रास्ता है। तो ये है कि ये जो बिन नासिम टाउन के अंदर है, तो ये है कि ये पूरी एग्जैक्ट कोई नापा गया है। इसी तरह ये एजुकेशन सिटी तो बिल्कुल साथ ही है। मरीर एक्सप्रेस पे, जी हाँ, 10 मिनट जहाँ मरीर एक्सप्रेस पे आ रहा है बिल्कुल डाउन हो रहा है, और इससे 10 मिनट की ड्राइव। ये इसका लोकेशन मैप है, मुख्तलिफ रास्ते जो यहाँ टच होते हैं। ये देहात दरसानू 96 है, आपने देहात में क्लासेस के अंदर लिया होगा। तो ये मुख्तलिफ इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं टूल प्लाजा से, ये शो करते हैं। ये बिल्डर प्रोफाइल है, सरजमीन पाक बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नाम है सरजमीन पाक, ये भी मैंने ही सजेस्ट किया था बिल्डर को। पहले कुछ और नाम था, तो जब ये SCCP में और चैम्बर में और आबाद की मेंबरशिप ली, तो इस नाम से जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो बिल्डर लाइसेंस होता है, एक बिल्डर लाइसेंस होता है, एक डेवलपर का लाइसेंस होता है, दोनों लाइसेंस से जो है वो आ चुके हैं। और ये कराची चैम्बर, फेडरल बोर्ड ऑफ की मेंबरशिप, फिर ये कि कंपनी चूँकि रजिस्टर्ड आबाद की भी मेंबर है, SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं बिल्डर का प्रोफाइल, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था, ये चूँकि एक्सक्लूसिव राइट है, सेल्स और मार्केटिंग की जुमला हुकूक उर्दू में ये है, ठीक है। ये समझे क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव कहेंगे, है ना, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, मतलब कोई और इसको मार्केट नहीं कर रहा BMN के अलावा। प्रोजेक्ट 1 भी, प्रोजेक्ट 2 भी, और इंशाल्लाह जो मैं आपको प्रोजेक्ट फेज़ 3 बताया है, इसमें फार्म हाउसेज हैं, फेज़ 4 भी है, फेज़ 5 भी हैं, मतलब काफ़ी ज़मीनें हैं इसकी सराउंडिंग में नियरेस्ट। तो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसमें आप और काम करेंगे, और काम भी इसका फेज़ 1 में जो है वो अभी शुरू करवा रहे हैं फ़ौरन ईद के बाद। उसकी तस्वीरें वगैरह मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूँगा। ये इसका लेआउट प्लान है। देखें, ये मेन 60 फीट का रोड है। ये गुलशन हदीद से ये रोड आता है अंदर, पूरा इस रोड पे ये हदीद से
आगे जाकर फिर एजुकेशन सिटी की तरफ टर्न हो जाता है। आगे एक लिंक रोड है, नेशनल हाईवे सुपर हाईवे को मिलाता है, मेन लिंक रोड है। तो ऐसे उसको वो भी कहते हैं कि ये जो है ना कौन सा है चाइना का सीपैक की रूट वाला रोड भी यही कहलाता है। यहीं से फिर आगे नॉर्दर्न पास फिर कोयटा से वो लिंक हो जाता है, आगे जाता है। ये इसका देखो इसकी जो लेआउट जो डिज़ाइनिंग है ये बड़ी अहम इस हवाले से है कि ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस के साथ ये कमर्शियल बेल्ट है, ये रेजिडेंशियल बेल्ट है। जैसे ही बंदा इंटर होगा गेट के इस तरफ लेफ्ट पे राइट पे सॉरी ये हॉस्पिटल का प्लॉट है, लेफ्ट पे पार्क है। अब देखिए सारी एम्यूनिटीज दी हुई हैं। जरा गौर से बात सुने समझे इसको, कभी भी कोई बिल्डर शुरू में एम्यूनिटीज नहीं देता, यहाँ सर सेंटर में देता है। ठीक है, यस सेंटर में देता है या आखिर में देता है, क्योंकि शुरू में अच्छी लोकेशन के पैसे मिलता है, ठीक है। इस पर बड़ा तफसीली डिस्कशन हुआ था कि हमें इस प्रोजेक्ट को आइडियल बनाना है कि बंदा अगर इसमें एंटर हो तो वो एक प्लेजेंट का एहसास हो उसको कि यार वो अच्छी जगह पर आ गया हूँ। फिर आगे जाए, फिर आगे ये कमर्शियल एरिया के साथ भी एक चीज़ जो ऐड की गई है, स्पेस अलग से, पार्किंग की स्पेस अलग से छोड़ी गई है। कमर्शियल 80 गज का प्लॉट है और इसके बाद ये फिर ये 40 फीट का रोड बड़ा मेन जो उसका एवेन्यू है ये 40 फीट का रोड है। शुरू में बड़ी कैटेगरी रखी गई है और फिर आखिर में जो नहीं छोटी कैटेगरी रखी गई। इसमें जो परसेंटेज आपने देखी है, आपने खुद भी कैलकुलेट की है प्रोजेक्ट्स के अंदर, 55% रेजिडेंशियल, इसमें 55% इस्तेमाल नहीं हुआ, 48% रेजिडेंशियल इस्तेमाल हुआ है, ताकि एम्यूनिटीज़ को ज़्यादा शेप दिया गया, ठीक है। तो ये कि ये सारा ये चीज़ें हैं। ये कमर्शियल का मेन जो एरिया है, जिसको कहें ना फ्यूचर की जो मार्केट बनेगी वो ये बनेगी। और यहाँ देखिए एंड पर ये प्लेग्राउंड, मस्जिद और यहाँ दी गई है, ठीक है। तो ये कि यहाँ भी एक मस्जिद है, एजुकेशन के लिए भी है। और ये पूरा फ्रंट जो है वो ये भी बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, गार्ड और सब कुछ वहाँ मौजूद है। कितने एकड़ है सर? ये 16 एकड़ कुछ 10-12 घंटे है, ठीक है सर। इसी के अंदर ग्लास और प्लॉट्स हैं, हाँ। ग्लास ये दोनों कंबाइन है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर बात ये है कि ये जो राइट साइड का जो एरिया है ना, ये रखा है विलास के लिए, यहाँ विलास बनेंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी जगह है ये, ज़्यादा नहीं है ये। और ये लेफ्ट साइड का प्रोजेक्ट सर लेफ्ट होगा, ये पूरा प्लॉटिंग है, तो इस तरह इसको डिवाइड किया, मिक्स नहीं होगा। सर ये कितने एकड़ पर है? ये टोटल 16 एकड़ है, 16 एकड़ कुछ घंटे का प्रोजेक्ट है। सर इसमें 80 और 120 की कितनी कितनी कटिंग आ रही है? बस ये तकरीबन 250 सामने आर वाले के सामने। हाँ ये तो 120 के तो कमी है जो ऑरेंज कलर में है, Selected येलो जो है ये 80 गज है। 80 ज़्यादा है। 250 के करीब बनते हैं इसके 80 गज, और बाकी जो है वो 120 गज के तकरीबन अराउंड 100 के करीब। सर अगर प्लाट लीज पे गए तो जी या पोस्ट पेमेंट करें तो उस पर 10% डिस्काउंट, अभी मैं इस पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वन में क्या क्या अवेलेबल है सर? या वन तो फुल बुक है। देखिए ये फेज 2 का, देखिए मैं 1 की एक बड़ी अच्छी सवाल किया आपने, अच्छी बात बताता हूँ, फेज 2 दोबारा आता हूँ। 1 ये छोटा सा है ना, 5-6 एकड़ के ऊपर है, ठीक है। अच्छा दिलचस्प बात ये है कि यहाँ से ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ये जो है ग्रीन एरिया, ये बेसिकली लोग आमतौर पर पूछते हैं कि सर इतना बड़ा पार्क, प्रोजेक्ट छोटा है, पार्क इतना बड़ा कर दिया है। तो फिर मैं उनको बताता हूँ नहीं ये पार्क नहीं है, ये नाकलास जमीन है, ये बदल रहे हैं नागला सर्वर आ गई है, इस वजह से पार्क दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये चूंकि नागलास टुकड़ा था और ये इसमें और इसके अंदर जो है ना रास्ता चाहिए था, ठीक है। तो ये रास्ते की परमिशन मैंने खुद जो डिप्टी डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ रिव्यू के, उनके जरिए मैंने ये परमिशन लिए, डीसी ने इसकी परमिशन दी हुई है कि चूँकि कोई और रास्ता नहीं है तो फिर जो है ना वो यहाँ से ये रास्ता जो है ना वो दिया गया प्रॉपर, ठीक है। तो ये
अच्छा, आम तौर पर बिल्डर इस तरह का कोई नक्शा उठा के देखने को नहीं कराची का है, समझ गए, ये बहुत माशाल्लाह सीनियर है, ठीक है ना, ये यहाँ प्लॉटिंग काट देते हैं, बिल्कुल काट दे इधर वाला क्या है, ठीक है ना, प्लॉट काट देते हैं और बेच भी देते हैं। इतनी डिमांड है इसके अंदर कि मुझे मतलब ब्लॉक करना पड़ा। कट भी सकते हैं, तो मैंने चलता है जी कट भी जाते हैं, कोई देखने थोड़ी आता है, हाँ, मगर मसला बाद में आता है ना, बाद में आता है मगर ऐसा काम 2 नंबर का है, हम भी नहीं कर सकते और बिल्डर भी, मैंने यही बिल्डर को चेक करने के लिए कहा ना कटिंग कर देता है। अंदर एक पट्टी है, इसमें 120 नहीं था सर, क्या है? ठीक है, इसमें 120 है ही। तो ये है कि और कमर्शियल इसका फ्रंट पे ही है। कमर्शियल सिर्फ फ्रंट पर है, मेन रोड फेसिंग है और इसके सामने तो ये बड़ी अच्छी वैल्यू है, फातिमा ड्रीम सिटी ऑलरेडी आबाद है और बहुत अच्छी वैल्यू हो गई वहाँ पर। किसी ने प्रोजेक्ट भी किया था, आप लोग गए थे इस तरफ, देहा कोटेरो है ये फेज 1 का, यस सर, गए थे। हैं गए थे ना देहा कोटेरो, ठीक है। तो ये कि ये तो पूरा ऑलमोस्ट जो है ना वो लॉक है, ये यहाँ सिर्फ एमिनिटीज बाकी हैं, वो अभी सेल नहीं की हमने, स्कूल है, हॉस्पिटल का ये प्लॉट सर है, कंप्लीट सेल हो चुका है। ये बिल्कुल बुक हो चुका, ओवर बुकिंग हो गई है, बल्कि ऑन मनी चल रही है, 1 लाख रुपए ऑन मनी भी चल रही है। खैर ऑन मनी तो हमारा नहीं, स्टूडेंट ने 40 प्लॉट लिए हैं ना, वो अब रीसेल को मेरे पास आता है तो मैं फिर उनके पास भेज देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये फेज जो है ना, ये 2 का वो है प्राइस। तो देखेंगे उसको थोड़ा सा रीड कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस प्राइस के अंदर, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर ये ज़्यादा महंगा नहीं है। देखिए सिंपल सा ब्रेकअप है, 80 यार्ड 7 लाख रुपए प्राइस है, बुकिंग कंफर्मेशन एलोकेशन, ये तकरीबन 3 से 4 महीने में देने हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए। इसके बाद फिर 7000 पर 57 इंस्टॉलमेंट है 7000 की, लास्ट टोटल ये इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा। लास्ट फिर वो 1000 रुपये बचते हैं, अच्छा 7 लाख में से ये डाल दिया इसमें। इसी तरह ये 120 गज के है ना, यहाँ पे। इसी तरह 120 गज की प्लॉट वही 10 लाख है, 1.5 लाख रुपए है, ये 9.5 लाख इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। बिल्कुल इस तरह 80 गज के जो कमर्शियल है वो 18 लाख है, इसकी ये 2 है, 6 लाख रुपए देने 3-4 महीनों में, फिर 21,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है। 53 मतलब ये पूरा ब्रेकअप जो है इसका बना हुआ है। एक और एडवांटेज भी दिया जा सकता है, अगर आपको फर्ज कीजिए इन 3 पेमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये कि आपने ये पेमेंट करा दी 1 लाख, ये जो है इसको इक्वली डिवाइड 7000 में ऐड कर ताकि 10-11 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बढ़ इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, लोगों को सहूलत मिल जाएगी कि चलो ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है, ये सब में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, चूँकि एक और चीज़ जो है इसमें फिर कॉर्नर और ये सारे अलग चार्जेस हैं। अच्छा, इसके अंदर चूँकि जो कमीशन है ना एफिलिएटर का, वो बेस करता है इन 3 पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट उसके मुताबिक 3 पेमेंट के बाद हमें बिल्डर कमीशन रिलीज़ करेगा और हम फ़ौरन जो है ना इसको फौरी तौर पर रिलीज़ कर देंगे जो हमारे एफिलिएटर्स होंगे। तो अगर ये 3 पेमेंट को फोकस करें कि जितना जल्द से जल्द करा दें, अगर कोई आप जैसे सहूलत मांगते हैं कि सर इसको डिवाइड करना है, तो वो फिर है स्पेशल केस है, मगर आमतौर पर आप कोशिश करेंगे कि 3 पेमेंट 3 से 4 महीनों में, यानी बुकिंग के वक्त 1 लाख, फिर 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद, फिर इसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी 4थे महीने 5वें महीने, ठीक है। तो ये एक तरह से वो आपका अच्छा सर, अगर स्टार्ट में ही जिस तरह का है बुकिंग 1 लाख कर दें, बाकी जो 2 लाख हैं वो हम ऐड करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो देन फिर भी तो रिलीज़ कर देगा ना कमीशन में, क्योंकि वो तो एक अंडरस्टूड होगी इसके साथ सेट हो गया। थोड़ा सा डिले होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसमें 3 महीने के बाद ही कमीशन रिलीज हो, हाँ, approximately। बहुत से लोगों ने भी, तो मैंने ये देखा कैश पेमेंट पे क्यों इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, हाँ 7 लाख 7 लाख रुपए तो लोग होते ही हैं, मतलब वो इधर उधर से करके लोग दे देते हैं, एडवांटेज भी उनको मिल जाता है, हाँ 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, 7 लाख का 70,000 कम हो गए, 1 लाख रुपए इस पर कम हो जाते हैं 10 लाख के ऊपर। तो यह है कि वो
एडवांटेज मिल जाता है तो लोग पे कर देते हैं। हमने पिछले सेशन में चेक भी दे दिए स्टूडेंट को, शायद तस्वीरें देखी हो आपने, जो एफिलिएटर्स थे उनको चेक डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिए हैं, आ भी चुका है, पेमेंट हो भी गई। और फेज 1 के सर ऊपर ये पेमेंट फेज 2 3 साल का है या 5 साल का? फेज 2 5 साल का है, फेज 2 5 साल का अच्छा सर एक क्वेश्चन है है। सर, इसलिए 57 इंस्टॉलमेंट है, 3 ये वाली इंस्टॉलमेंट तो 60 मंथ बन जाते हैं। जी बेटा। सर अगर जिस तरह ये कोई भी है कस्टमर प्लॉट जो है वो बुकिंग कराता है, बुकिंग कराने के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट के बाद वो आता है कि कहता है कि जी मैंने जो है प्लॉट कैंसिल करवाना है या जो है वापस करना है, मैं नहीं दे पा रहा इंस्टॉलमेंट, तो सर उस सूरत में क्या पॉलिसी है? देखिए इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है पूरा जो है, उसके अंदर आम तौर पर होता क्या है कि अगर आप हिसाब करने जाएंगे ना तो बिल्डर उल्टा आपके निकाल देगा, इतनी परसेंटेज की कटौती होती है कि पूरी कॉस्ट के ऊपर इतना परसेंट कटेगा और आपको उसकी पेमेंट मिलेगी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद 5 साल बाद। ये होती है कंडीशन कि उस प्रकार से आप करेंगे इसको। सर एक ये भी कंडीशन ये हो सकती है कि जितनी उसने पेमेंट कर दी है, मिसाल के तौर पे 2 लाख पेमेंट कर दी है उसने, और वो अगर वहाँ भी कहते हैं कि जी इतनी परसेंटेज हम आप पे काटेंगे और ये आप अगले दिन आप लीजिए या आप ही ले लीजिए, इस तरह होता है सर? नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आम तौर पे जो प्रैक्टिस है ना वो बता रहा हूँ, या किसी और प्रोजेक्ट में इस तरह बुक कराते हैं ना, और अगर कोई आप 2 साल की पेमेंट के बाद जब वापस करने जाते हैं पैसे तो वो इतने कट जाते हैं, 2 साल में जो पे करते होते हैं बिल्डर बोलते हैं जी और आपके नाम पे इतने निकलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। ये मैं आम प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है। मैं आपको एक केस बताऊँ प्रैक्टिकली का, मुझे भी इस पर हैरत हुई। सबसे पहला यूनिट एक अलमदार साहब है, इन्होंने सेल किया था यहाँ पर, ठीक है, 50,000 रुपये बंदा वो बयाना दे गया। अलमदार साहब हमारे एफिलेटर ही हैं और 50,000 रुपीज़ जो है ना वो उनका टोकन आ गया कैश, मैंने नहीं अपने हाथों से यहीं बैठ के। उसके बाद वो जो साहब ने बुक कराया था उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि मैंने वेला बुक कराया था 80 गज का, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद उनको कोरोना हो गया, बिस्तर पर चले गए, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई। तो मुझे एफिलिएटर्स से सर ये मैं बार बार फ़ोन कर रहा था, मैंने कहा पेमेंट नहीं है, फिर उन्होंने मुझे बताया था ये कंडीशन है। मैंने बिल्डर को मैसेज किया कि जी यही कंडीशन है और ये जो है ना आप यकीन करें उसी वक्त जो है ना राइडर को भेजा है 50,000 का चेक लेकर और ऐसा उनको वापस कर दिया। पहला केस मैंने तस्वीर भी बड़ी हाईलाइट की थी ना अपने ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, वापस कर दिया। तो यहाँ और सुनिए आप बता दीजिए तो मैं प्रेजेंटली केस हुआ है, बेसिक कटिंग के बाद पैसे वापस हो जाएंगे क्योंकि कमीशन एक बड़ा अमाउंट होता है, जो भी कमीशन होगा उसकी कटौती के बाद अमाउंट वापस कर देंगे, ठीक है। अव्वल तो ये नौबत नहीं आएगी क्योंकि अगर कोई पर्सनल मार्केट में फाइल बेच सकता है उसको प्रॉफिट होगा। अभी फेज 1 में यही हो रहा है, 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए ऑन के ऊपर फाइल बिक रही फेज 1 में, ठीक है। अभी तो सिर्फ बाउंड्री वॉल है, काम शुरू करेंगे। तो जब वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो मार्केट से आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, आपको बिल्डर को वापस करने की जरूरत ही नहीं है। सर फेज 2 के डेवलपमेंट का क्या है, किस कंडीशन में है? फेज 2 का मैंने बताया ना आपको, बाउंड्री वॉल है। देखिए अभी तो सिर्फ 20% बुक हुआ है ना, ये जब तकरीबन 50-60 तक बुकिंग हो जाएगी फिर इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी क्या करेगा काम शुरू करके बंदा, बताया ना 5 साल पेमेंट के टाइम है, लोग इंस्टॉलमेंट में देंगे। अभी वो तो 1-2 साल में अगर रेडी भी कर दे फॉर पोजीशन तो आप क्या करेंगे पोजीशन लेकर, इंस्टॉलमेंट पूरी होंगी जब ही होगा। हाँ अगर जो फुल कैश पेमेंट दे चुका है वो अगर चाहता है हमको एक्टिविटी बना नहीं सकता अभी वो, क्योंकि बनाने के लिए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, सीवरेज, पानी और ये लाइन, तो वो फिर इसमें टाइम लगेगा, चूँकि 5 साल का पीरियड है। अच्छा सर एक सवाल जी, बिल्डर की एक आम प्रैक्टिस है कि 5 साल की टाइमिंग देंगे
6 سال 7 سال 8 سال، اور بحریہ میں اس چیز کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 سال میں اگر ہم قبضہ نہیں دیتے ہیں تو ہم رینٹ دیں گے. تو ادھر کیا پالیسی ہے؟ یہ تو ابھی وقت آیا نہیں ہے. اس طرح کی تو پالیسی نہیں کا رینٹ دے گا وہ قبضہ دے دے گا. کہاں سر لیکن لینڈ کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا قبضہ دینے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ پراپر آپ کی سیوریج کی لائن ہے، پانی کی لائن ہے، یہ ہوتا ہے نا بجلی. یوٹیلیٹیز جو ہے نا، بجلی جو ہے یہاں پر پورا سولر کا پروگرام ہے، پورا پروجیکٹ سولر پر ہوگا. ٹھیک ہے. پانی کی جو مین پاکستان کو کراچی کو جو پانی کی لائن سپلائی کرتی ہے وہ اس کے سامنے سے گزر رہی ہے پروجیکٹ کے. بلکہ انفیکٹ اگر میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں تو یہ بیسیکلی 19 ایکڑ کا ٹکڑا تھا. ٹھیک ہے. فیز 2 کا. اس میں سے یہ روڈ جو میں نے دکھا نا 60 کا روڈ بھی یہ بلڈر کی زمین سے گزر رہا ہے، اس کے سامنے بھی تھا. وہ آگے فلٹر پلانٹ تو مین پائپ لائن گزر رہی ہے، بہت بڑی پائپ لائن ہے. وہاں جاتے ہیں نا تو آواز بھی آتی ہے، بہت ہیوی پائپ لائن ہے، وہیں سے گزر رہی ہے. پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں. بجلی اور پانی کا مسئلہ وجہ سیوریج تو پیچھے ندی ہے اس کے آگے جا کر سیوریج بھی جو ہے نا وہیں گرے گی. ویسے جو ہے نا کوئی وہ ہوتا ہے نا انفراسٹرکچر کو لانا پروجیکٹ تک، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. سر زمین جو سائڈ پہ ہے وہاں پہ اگر بور کی جائے تو میٹھا پانی آتا ہے یا کھارا پانی؟ یہ تو یار میں نے چیک نہیں کیا. سر یہ میٹھا پانی موجود ہے، پانی کا لائن جا رہی ہے وہاں پر. درسان الجنوب گیا تھا نا میں سر، ہاں. سائڈ میں وزٹ پہ. اچھا. تو موسٹلی لوگوں سے میں نے یہ بات سوال کیا تھا. اچھا سوال کیا، کیا بتایا؟ انہوں نے کہا یہاں جہاں بھی بور کرتے ہیں موسٹلی میٹھا پانی ہی آتا ہے. میٹھا پانی آتا ہے. کیونکہ ملیح کی زمین ہے تو ہریالی اسی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ کہ وہاں پہ میٹھا پانی رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال میں نے سرچ نہیں کیا تو اچھا ہوا آپ نے ذرا اضافہ کر دیا نالج کا کہ اس میں جو ہے نا پانی جو ہے نا میٹھا آ رہا ہے. جی اب میں آپ کو یہ بحریہ کا جو پروجیکٹ ہے نا اس کا تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ جو لوکیشن ہے یہ فیز 2 ہے. یہ لبرٹی کمرشل ایک ایریا ہے بحریہ کا. جب آپ بحریہ میں ان ہوتے ہیں تو آگے جا کر جو ہیڈ آفس شاید دیکھا ہو آپ لوگوں نے. یہ ہیڈ آفس کی لیفٹ سائڈ پر ہے، یہ رائٹ پر ہیڈ آفس آتا ہے، لیفٹ پہ اوپر لبرٹی کمرشل. ہاں وہ اوپر تو گھومتا ہے نا، یہ گھومنے سے پہلے ہے یہ. تو یہ ہے کہ اس میں 1 بیڈ اور 2 بیڈ کے ہیں. پری لانچ پرائز ابھی عید پر اس پہ 15% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں. پی ایم این جو ہے ظاہر بلڈر سے سر کانٹیکٹ ہوا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وہ فولڈر ہے پورا. پرائز اسٹرکچر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا یہ ایک اور فیز ہے اس کا، یہ الگ ہے. یہ سوری وہی ہے، یہ وہی بلڈنگ ہے، اس کا وہ الگ ہے. اس میں پرائز ہے 2 بیڈ کا 800 اسکوائر فٹ کا 8,150 روپیز اسکوائر فٹ ہے. 8,001. اصل میں بیسیکلی وہاں چل رہا ہے 9,000 روپے. اگر آپ اور پروجیکٹس پہ جائیں گے تقریباً 9,000 چل رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ ریٹ ہم نے پورا سروے کر کے ریسرچ کر کے پھر سجیسٹ کیے بلڈر کو کہ بھئی آپ اس پہ کم رکھیں ریٹ تاکہ آپ کو رسپانس ملے. تو یہ کمپیریٹیولی جو اور لوگ ہیں اس سے ریٹ کم ہے. 2 بیڈ کا کتنا ہے سر؟ 2 بیڈ جو ہے میں ابھی اس کا بروشر آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ. 8,150 کریں ملٹیپلائی یہ آگے اس پر یہ آگے انٹو 800. یہ دیکھیں 2 بیڈ جو ہے یہ 800 اسکوائر فٹ کا ہے. 8,750. یہ جو ہے نا یہ دوسرا فیز ہے. یہ تقریباً آپ کو 70 لاکھ روپے کا پڑے گا تقریباً 3 منتھس کی انسٹالمنٹ کے اوپر. 2 بیڈ یا 3 ایئرس. ٹھیک ہے. یہ 2 بیڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا لے آؤٹ ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کا یہ 1 بیڈ کا ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. یہ 8,250 پر اسکوائر فٹ 1 بیڈ. سر بحریہ کا جو گیٹ ہے اس سے کتنا تقریباً 4 کلومیٹر ہے. 4 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ 40,25,000 کا ہے. ابھی بکنگ پر اس پہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ ہے. سر اس پہ لیز ہے تو 50% ڈسکاؤنٹ ہے. پھر اس پہ ابھی آپ کا جو انسینٹیو ہے وہ بھی ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. یہ اس کی شاپس ہیں نیچے اور یہ اس کا فلور پلان ہے وہ میں آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں.
ये इसके फ्लोर प्लान है, उसमें 1 बेड 2 बेड का सारा दिया होगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक ये है, ये फेज़ 1 है, नेक्स्ट उसके ये फेज़ 1 की है। फेज़ 1 जो है ये भी करीब है, इसकी ये बिल्डिंग पूरा है, ठीक है। ये आपका इसके रेट जो है थोड़े से ज़्यादा हैं, ये 3 बेड के हैं इसमें, बेसिकली 2 कैटेगरी है इसमें, 3 बेड 3 साइड ओपन है, और ये 1274 स्क्वायर फीट है, और ये 9250 का रेट है यहाँ पर। इस पर भी अभी 50% डिस्काउंट है, ईद की वजह से इसकी अकोमोडेशन है, इसको ये दोनों कैटेगरी के ये इसमें है। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये 3 बेड है पर 2 साइड ओपन है ना, ये कॉर्नर के हैं, ये रेट 75 है, 8750। ये उसकी एकोमोडेशन है ये, ठीक है। ये भी 3 ईयर के था जी, ये 3 ईयर के ये 3 ईयर है, बहरिया का 3 ईयर है। 3 ईयर के बाद जो है ना वो एक दिन के 10,000 रुपये जुर्माना लगाता है बहरिया, लेट अगर बिल्डर देता है ना, तो 3 साल में तो हाल में कंप्लीट करना होता है। जी कोई सवाल? ये प्राइस स्क्वायर फीट के हिसाब से ये फिक्स है, इसके में कुछ हिडन चार्जेस नहीं है? नहीं, स्क्वायर इसके बहरिया में हिडन चार्जेस नहीं होते, यही रेट होते हैं जो भी बता रहे हैं। सर ये तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जी, सर ये इकरा आयशा का रेजिडेंशियल जो वाउचर है सर, इस पे वो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है डेवलपमेंट चार्जेस, वो सर